Hello everyone, I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. This is a new series wherein we'll analyze previous year economics questions via quiz. Before starting the quiz, a small announcement. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily Hindu analysis, daily economics MCQ series, daily polity classes, strategy related to UPSC, CSC, and much more. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Also, Arpita Ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code SharmaYT10 to get 10% discount. Now let's begin with the quiz. Here comes your question number 1. With reference to balance of payments, which of the following constitute the current account? करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, फॉरेन एसेट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या आता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपकी 12th के मैक्रो का टॉपिक है. नॉट मतलब इट्स अ वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन, अगर आपने करा होगा तो आपको आता होगा. नॉट अ वेरी टफ वन. कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं उसके करंट अकाउंट में? बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स या स्पेशल ड्राइंग राइट्स. इन चारों में से कौन से? वन ओनली, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन टू एंड फोर. What will be the answer, guys? Comment down your answers. The answer will be option C, which is 1 and 3. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट्स आते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजैक्शंस. तो इसमें सिर्फ करंट अकाउंट से रिलेटेड पूछी गई है चीजें. तो करंट अकाउंट में क्या क्या आती है? Balance of payment is of a country is a systematic record of all economic transactions. Just a second. Of all economic transactions. Yep. Of all economic transactions. No, this doesn't work. Yeah. Of all economic transactions between the residents of one country with the residents of the other country in a financial year. तो एक systematic record है जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का होता है रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द रेसिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. हमने पुराना वाला एक क्वेश्चन किया है प्रीवियस ईयर में ही, जिसमें कि पूछा हुआ था कि बीओपी क्या एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसमें था रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द गवर्नमेंट ऑफ अदर, या गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री विद द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री. सो नो, दैट इज नॉट ट्रू. मतलब उस केस में ये गलत हो जाएगा. पीओपी जो होते हैं एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होती है जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक कंट्री के रेसिडेंट्स के दूसरे कंट्री के रेसिडेंट्स के साथ होते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर. अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? इंक्लूड ऑल द फॉरेन रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर. So now the capital account records all international purchases and sale of assets such as money, stock, bonds, etc. तो आपके foreign estates SDR का तो कोई लेना देना है ही नहीं. SDR तो I guess it is not even included in balance of payment. SDR is an instrument by IMF for maintaining liquidity. I'll explain that later. Now, the current account records exports and imports in goods and services and transfer and payment. Trade and services is denoted as invisible trade. अब इसमें invisible तो जो balance of trade में आ जाती है आपकी goods की ट्रेड. एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स विच मींस बैलेंस ऑफ सर्विसेज इसमें आ जाता है कि इनविजिबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सर्विसेज को बॉर्डर क्रॉस करते हुए नहीं देख सकते. दैट इज अ बेसिक लॉजिक. Now, the balance of trade and balance of invisibles are a part of current account. This there is only one option where 1 and 3 are together, hence answer C. Moving on to the question number 2. The main objective of 12th 5-year plan is. What is the main objective of 12th 5-year plan? Inclusive growth and poverty reductions, inclusive and sustainable and inclusive growth to reduce unemployment, faster, sustainable and more inclusive growth. ठीक है, चारों ऑप्शंस मिलते जुलते ही हैं. सो करेक्ट वन चूज करना इतू सा टफ हो सकता है, बट स्टिल गेस इट. पावर्टी रिडक्शंस तो हम काफी बचपन से करते ही आ रहे हैं 5 ईयर प्लान्स में, मतलब काफी स्टार्ट से करते आ रहे हैं. फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड ईयर 5 प्लान्स में सब में हमारा था कि गरीबी हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेजर गरीबी हटाने की बात हुई थी 5th 5 ईयर प्लान में.
जो कि इंदिरा गांधी के टाइम का उनका स्लोगन भी था, तो हमारा ये तो शायद नहीं होगा। देन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, हो सकती है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हमें चाहिए हो जो कि इंक्लूसिव हो, सब लोगों के साथ हो सके। व्हाट वुड बी द आंसर गाइस? व्हाट वुड बी द ऑप्शन, ए बी सी और डी? चारों ऑप्शन मिलते जुलते ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। द ऑप्शन वुड बी, and the answer would be option D, which is faster, sustainable, and more inclusive growth. The 12th five-year plan, that is 2012 to 2017, mainly focuses on growth that should be faster, sustainable, and inclusive. Thus, option D is correct. Moving on to question 3. With the reference to यूनियन बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? तो ये आ गया है आपका गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे कि कौन से जो पार्ट्स होंगे वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर होंगे। डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज एंड पेंशन, सब्सिडीज। तो आपको पता होगा कि इसमें कि कौन से आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं और कौन से अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर आपने गवर्नमेंट बजट वाला टॉपिक प्रिपेयर करा है, दैट इज इनटू 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स, या दैट इज इनटू दैट एज वेल। Defense expenditure, interest payments, salaries and pensions, subsidies. Select the correct answer using the code given below. One only, सिर्फ defense expenditure. Two and three, सिर्फ interest payment to salary and pensions. या one, two, three, four, या कोई भी नहीं. What would be the answer, guys? क्या होगा इसका जवाब बताइए। चलिए, तो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, विच इज 1 2 3 4। ये चारों ही नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो दिस इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होती है, दिस इज लार्जली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये ऑल्सो करती है इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर ज्यादातर इसमें रेवेन्यू ही होती है। इट कवर्स ऑल एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लान एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नाउ डिस्क्रिप्शन, a major part of the non-planned expenditure is obligatory in nature, like interest payments, pensions, statutory ट्रांसफर्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट। तो आपके जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो ज्यादातर सारे ऑब्लिगेटरी इन नेचर, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्शन है उन्हें देने की। इंटरेस्ट पे आपको करना ही पड़ेगा, पेंशन अगर जिन लोगों को मिलती है तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। देन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होते हैं दैट कंस्टिट्यूट द बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर। ज्यादा जो सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर में आता है उनकी, दैट इज ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। द बिगेस्ट आइटम्स ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर इंटरेस्ट पेमेंट्स, डेट सर्विसिंग, डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज, जो कि चारों ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं और ये इकोनॉमिक टाइम्स में एज इट इज प्रिंटेड था। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4। The terms marginal standing facility rate and net demand and time liabilities, sometimes appearing in the news, are used in relation to। तो ये तो शायद अभी भी आते हैं न्यूज़ में, 2014 तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन दे स्टिल कम इन न्यूज़, दे आर स्टिल इन यूज। सो ये जो दो टर्म्स हैं ये किस चीज के रिलेटेड है? बैंकिंग ऑपरेशंस के, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हैं, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो जब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की बात हो रही है, एनडीटीएल की बात हो रही है, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो अगर जरा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता है कि मिलिट्री की कोई स्ट्रैटेजीज नहीं होती जिसमें डिमांड या लाइबिलिटी का यूज हो। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि अगर जिन्होंने जरा सा भी हिंट अगर लेना होगा तो वो डिमांड एंड डिमांड मैच कर करके कुछ भी करके ये ऑप्शन टिक कर देंगे, विच इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विच इज बैंकिंग ऑपरेशंस। तो नेट डिमांड या टाइम लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो डिमांड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं बैंक के पास जो कि उन्हें डिमांड पे चुकानी पड़े। जैसे कि अगर मैंने कैश रखवाया हुआ है अकाउंट में, तो वेन एवर आई विल गो टू द बैंक कि आई वॉन्ट माई कैश बैक, दे के नॉट डिनाई मी, तो वो मेरी डिमांड लाइबिलिटी है, वो उनकी डिमांड लाइबिलिटी है कि मैं जब डिमांड करूंगी उन्हें तब चुकानी पड़ेगी। ठीक है, सच एज करेंट डिपॉजिट्स, कैश डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट्स और अनक्लेम डिपॉजिट्स, कि ऐसा भी कोई पैसा है जो कोई लेने नहीं आया बहुत टाइम तक पर सडनली आ जाए तो वो उनकी डिमांड
लाइबिलिटीज में आता है. नाउ देयर कम्स टाइम लाइबिलिटीज. टाइम लाइबिलिटीज क्या होती हैं? दे आर दोज लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक विच आर पेबल ऑन पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड. मतलब डिमांड पे नहीं देना पड़ता, पर उनका एक टाइम फिक्स होता है जो कि पूरा होने के बाद उन्हें देना पड़ता है. जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, आपके स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गए, गोल्ड डिपॉजिट्स हो गए, तो ये वाले डिपॉजिट्स हो गए. तो ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो होते हैं वो आपकी बैंकिंग टर्म है. और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? ये एक रेट है जिसपे आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म केस में लोन देता है. बेसिकली फोर्टनाइटिंग मतलब 14 दिन के अंदर या आई गेस एक रात के अंदर भी वो लोन आरबीआई साइन कर देता है अगर बैंक एकदम डूबने की कगार पे हो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस. और तो बैंक तो आरबीआई वुडेंट वांट कि बैंक कि कोई भी बैंक एकदम से खत्म हो जाए. तो एट दैट केस बैंक को सेव करने के लिए एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में आरबीआई लेंड्स मनी टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. ये एक पीनल रेट होता है एक तरीके से, क्योंकि आप ले तो पैसा रेपो रेट पे भी सकते थे बैंक से, बट रेपो रेट के ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट विच इज आई गेस करंटली 4.65% है जो कि करंटली अभी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 5. Which one of the following best describes the term merchant discount rate? Sometimes seen in news. 2018 में आया था ये. The incentive given by a bank to merchant for accepting payments through debit cards pertaining to that bank. कि जो एक इंसेंटिव देती है बैंक मर्चेंट्स को अगर वो उनके पेमेंट के डेबिट कार्ड्स के थ्रू लेते हैं, तो उनकी बैंक के डेबिट कार्ड्स के थ्रू लेते हैं, तो द अमाउंट पेड back by banks to their customers when they use debit cards for financial transactions for purchasing goods or services. The charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customers through the bank debit cards. The incentive given by the government to merchants for promoting digital payments by their self by their customers through point of sale machines and debit cards. तो आपके चार ऑप्शंस जो हैं कि वो जानना चाहते हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो किस चीज को कहते हैं. जो अमाउंट जो है आपकी बैंक्स अपने कस्टमर्स को देती हैं उनका डेबिट कार्ड यूज करने के लिए, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जो चार्ज है जो मर्चेंट को देना पड़ता है एक बैंक के द्वारा. मतलब मर्चेंट बैंक एक मर्चेंट से वो चार्ज लेता है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए अपने कस्टमर्स का थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड्स. द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, या ये कोई इंसेंटिव है जो कि गवर्नमेंट देती है मर्चेंट्स को ताकि वो उनका डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिल सके. व्हाट इज द ऑप्शन? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली? ऑप्शन तो चार है वो तो मैं बता चुकी हूँ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, जल्दी बताइए. The correct option is option C, the charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customers through the bank's debit card. So merchant discount rate is fee borne by the merchant for using credit or debit card payment system. So C is the correct definition. तो merchant discount rate जो है वो आपको discount बोल के सिर्फ confuse कर रहे हैं. ये एक ऐसा rate है, ऐसी fee है जो merchant को pay करनी पड़ती है क्योंकि वो credit card या debit card का system use कर रहा है, which is approximately 1 to 3% के अंदर ये होता है. To encourage digital transactions, Ministry of Electronics and Information Technology had announced that from 1st January 2018 for the next 2 years, it will bear the MDR fees of merchants for payments up to rupees 2000 if such payment is made via debit card, Bheem or Aadhaar card enabled payment system. But that itself is not the definition of MDR. मतलब इसमें पूछा हुआ था MDR को डिस्क्राइब कौन सी चीज करती है. ठीक है, दिस इज करेक्ट कि इंसेंटिव ऐसा देना चाह रही है मर्चेंट्स को, वो एमडीआर प्रमोट करना चाह रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाह रही है, बट दैट डजंट डिफाइन व्हाट इज एमडीआर. सो दस सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. और ए और बी का तो कोई लेना देना भी नहीं है, ज्यादा आसपास भी नहीं है ये करेक्ट ऑप्शन के. Cool. Now moving on to the sixth question. With reference to the Trans-Pacific
partnership, consider the following statements. It is an agreement among all the Pacific Rim countries except China and Russia. तो Pacific Rim countries कौन सी होती हैं? जो rim क्या होता है? किसी भी चीज की बाउंड्री, जैसे हम ग्लास का रिम कहते हैं, तो ग्लास का रिम मतलब उसके ऊपर का जो सर्कल होता है। तो वैसे ही पैसिफिक रिम मतलब पैसिफिक ओशियन से जो बाउंड्रीज टच हो रही हैं, जो वो वाली जो नेशंस हैं। तो उसमें इस ये कह रहे हैं कि इट इज एन अग्रीमेंट जो कि सारी ही पैसिफिक कंट्रीज के बीच में है, पैसिफिक रिम कंट्रीज के बीच में, एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। और दूसरा ऑप्शन है आपका, इट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इज समथिंग रिलेटेड विद सी, तो सी टाइम सिक्योरिटी का स्ट्रैटेजिक अलायंस है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। क्या वन करेक्ट है, क्या टू करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है? Comment down your answers below. So the correct answer is neither one nor two, which is option D. Okay, so the 12 countries that border the Pacific Ocean signed the TPP in February 2016. TPP is Trans-Pacific Partnership. The pact aimed to deepen economic ties between these nations, slashing tariffs and fostering trade to boost growth. तो ये जो था ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें आपको ट्रेड बूस्ट कर रही थी। इसमें आपका जो एम था दैट वाज टू बूस्ट ट्रेड और टैरिफ्स कम करना, और इन नेशंस के बीच में इकोनॉमिक टाइज जो है वो डीप करना, मतलब मजबूत करना इकोनॉमिक रिलेशंस। तो पैसिफिक रिम जो है वो कंट्रीज होती हैं जो पैसिफिक ओशन को बॉर्डर करती हैं, और उस लॉजिक से नॉर्थ कोरिया और कोलंबिया को भी जो पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं, लेकिन वो टीपीपी की लिस्ट में नहीं है। और इसीलिए क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है कि मतलब चाइना और रशिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया और कोलंबिया भी पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं, लेकिन वो उस अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। एंड नाउ टीपीपी इज मेंट फॉर फ्री ट्रेड। ये ऐसा कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सी टाइम सिक्योरिटी के लिए। इट इज टू प्रमोट ट्रेड, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो दस द करेक्ट ऑप्शन इज नाइदर वन नॉर टू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With the reference to digital payments, consider the following statements. Bheem app allows the user to transfer money to anyone with UPI enabled bank account. तो ये कहना चाह रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर आप ये बताएं कि जो भीम एप्लीकेशन है वो एक यूजर को अलाउ करता है कि वो किसी भी पर्सन को जिसका यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट है, मतलब जिसके बैंक अकाउंट से उसका जिसके यूपीआई से उसका बैंक अकाउंट लिंक्ड हो और चल जाता हो, तो उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, while a chip पिन डेबिट कार्ड हैज 4 factors of authentication, भीम ऐप हैज ओनली 2 factors of authentication। अभी कह रहे हैं कि जैसे कि डेबिट कार्ड जो होता है जिसमें चिप रिमेम्बर अभी मार्च के बाद एक वो आया था कि सबको नए एटीएम्स मिलेंगे जिसमें चिप एनेबल्ड होगी, और अब पुराने वाले एटीएम्स नहीं चलेंगे जिसमें सिर्फ एक ब्लैक स्ट्रिप होती थी, मैग्नेटिक स्ट्रिप वाली नहीं चलेगी। अब आपको चिप वाली एक डेबिट कार्ड मिली है। तो दिस सेज की जो चिप वाली डेबिट कार्ड है उसमें 4 factors ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आप एकदम सिक्योरली आप अपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो भीम ऐप में जो है वो दो ही हैं। तो अब विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट? अब इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, ये सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला, या बोथ वन एंड टू, या नीदर वन एंड टू? कौन सा सही है बताइए गाइस। आंसर योर आंसर, कमेंट डाउन योर आंसर्स। So the option is, so the correct answer is option 1, which is one only, option A, yeah right. So देखो भीम ऐप जो है उसके पास 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, पहला जो है कि इट ऐप द ऐप बाइंड्स विद अ डिवाइसेस आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो डिवाइस की आईएमआई नंबर और मोबाइल नंबर के साथ, ये मतलब पहला इसका ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है। दूसरा जो है, यूजर को अपना बैंक अकाउंट सिंक करना पड़ता है, चाहे यूपीआई एनेबल्ड हो चाहे यूपीआई नहीं एनेबल्ड हो, लेकिन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको पूरा करना है तो उसके साथ आपको
अपना बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा उस ऐप में। फिर थर्ड है व्हेन अ यूजर सेट्स अप द एप्लीकेशन दे आर आस्क्ड टू क्रिएट अ पिन व्हिच इज नीडेड टू लॉग इनटू द ऐप। ये आपका जैसे अगर जो भी आप ऐप यूज करते होंगे तो उसमें आपसे एक सिक्योरिटी पिन मांगते हैं ताकि आप बार बार लॉग इन कर सकें वो एप्लीकेशन। और वो आपका यूजुअली कोड नहीं होता, जो आपका स्क्रीन लॉक होता है वो नहीं होता है, स्क्रीन लॉक के अलावा एक और कोड मांगा जाता है। तो हेंस ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, जिसमें वो कह रहे हैं कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। नो, इट हैज 3 फैक्टर्स, and the only first one is correct, giving us the answer 1, which is answer A. Moving on to the next question. Question 8. Consider the following statements. The Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state governments. तो जो FRBM कमेटी है उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया है कि जीडीपी रेशो जो है 60% होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए बाय डेट टू जीडीपी रेशो जो है आपका दैट शुड बी 60% for the general government by 2023, comprising 40% of the central government and 20% for the state government. तो ऐसा कुछ रिकमेंड किया है कि नहीं? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ द जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above are correct और इज करेक्ट? तो यहाँ आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज अबाउट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट की जो रिव्यू कमेटी थी उन्होंने ऐसा कहा है क्या कि जो आपका डेट टू जीडीपी रेशो है 60% होना चाहिए जनरल गवर्नमेंट के लिए। जनरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंबाइंड, विच मीन्स यहाँ पे आप 40% शेयर जो है डेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो और 20% जो डेट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो। देन नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज है that are 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the state governments. Okay. As per the constitution, क्या है हमारे constitution के हिसाब से एक स्टेट जो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है कोई भी लोन रेज करने के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब अगर जो स्टेट है वो इट हैज सम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज. नाउ व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? So the answer is 1 and 3 only, which is option 3. Now, तो as per the Constitution of India वाला जो part है that is as per Article 293, a state may not without the consent of the government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the state by the government of India or by its predecessor government, or in respect of which a guarantee has been given by the government of India or by its predecessor government. Thus the statement 3 is correct. अब इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 293 ऐसा बताता है कि हाँ आपको कंसेंट की जरूरत है स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी लोन रेज करने के लिए अगर उनका स्टिल आउटस्टैंडिंग है कोई लोन का पार्ट जो कि इस गवर्नमेंट ने या इसके पुराने वाली गवर्नमेंट ने दे रखा है. नाउ द FRBM रिव्यू कमेटी जो कि NK सिंह जिसके चेयरपर्सन थे उन्होंने एक ड्राफ्ट डेट मैनेजमेंट का ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया था. ठीक है, और उन्होंने कहा था कि 2017 का ये बिल रिप्लेस किसको करना चाह रहा है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को. Now, one of the key recommendations of the committee was about the debt to GDP ratio. The committee suggested that using debt as the primary target for fiscal policy, uh, a debt to GDP ratio of 60% should be targeted with a 40% limit for the center and 20% of फॉर द स्टेट्स. तो आपकी जो भी जीडीपी है टोटल उसमें से आप मैक्सिमम 60% जो है डेट ले सकते हैं या डेट के थ्रू
फंड कर सकते हैं, उसमें से भी आप 40% जो होगा वो सेंटर का होगा एंड 20% जो होगा वो लिमिट होगी स्टेट्स के लिए. नाउ इट नोटेड दैट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज that have adopted fiscal rules have targeted a debt to GDP ratio of 60%. उन्होंने ज्यादातर देशों का देखा कि debt to GDP ratio जो है वो 60% ही थी. Now the targeted debt to GDP ratio should be achieved by 2023. 2023 तक के लिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 60% तक होना चाहिए. 60% जो है वो कंबाइंड मिला के होना चाहिए. 40% फॉर द central government and 20% is the limit for the states. Now this makes the statement one correct. Now जो one और three वाला जो एक ही option था वो था option C. Thus that is correct option. Moving on to the next question. Which of the following links all the ATMs in India? तो सारे ATM को कौन सी association या कौन सी what is this called कौन सा option link कर रहा है? Indian Banks Association, National Securities Depository Limited, National Payments Corporation of India, Reserve Bank of India. इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी एसोसिएशन है या ऐसा कौन सा कंपनी है, कॉरपोरेशन है या ऐसी कौन सी बैंक है जो सारी एटीएम्स को लिंक कर रही है? व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? So the correct option is option C, which is National Payments Corporation of India. So NPCI, which is National Payments Corporation of India's National Financial Switch (NFS) system जो है वो largest network है जो कि shared automated teller machines in India. It was designed, developed and deployed by the Institute for Development and Research in Banking टेक्नोलॉजी IDRBT ने इसे डिजाइन किया था, डेवलप किया था इस स्कीम को, ठीक है, विद द गोल ऑफ इंटरकनेक्टिंग द एटीएम्स इन द कंट्री एंड फैसिलिटेटिंग कन्वीनियंस बैंकिंग. अब क्या होता है, हम एसबीआई के बैंक के एटीएम में अगर हम पीएनबी का कार्ड लेके जाते हैं तो भी हमारे पैसे निकल जाते हैं. तो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि लिंक करने का क्या मतलब है. अगर हम किसी भी बैंक के एटीएम में जाएं, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड लेके, चाहे उसका ना भी हो, तो आपके पैसे निकल जाते हैं. तो दैट इज द होल पॉइंट कि लिंक करने का क्या मतलब है यहाँ पे. अब नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है एटीएम कनेक्ट्स having 3.7 members 3.7 members and connecting about 50,000 ATMs. I guess there's some mistake. I'll just correct it. It's not 3.7 members, it's 37 members. So yeah, and connecting about 50,000 ATMs was taken over by NPCI from Institute of from IDRBT on December 14, 2009. तो पहले जो है वो IDRBT कर रही थी और अब NPCI कर रही है. NPCI का जो सिस्टम है दैट जो यूज करती है इन सबको लिंक करने के लिए, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच. मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन. Question 10. The problem of international liquidity is related to the non-availability of. अब international liquidity जो है, ये जो इसकी जो प्रॉब्लम है वो किस चीज की नॉन अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है? कौन सी चीज ऐसी है जो अवेलेबल नहीं है? गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज और एक्सपोर्टेबल सरप्लस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज, गोल्ड एंड सिल्वर, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टेबल सरप्लस. इन सब में से ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है और इस वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है? ना इंटरनेशनल लिक्विडिटी से यहाँ पे मतलब है कि अगर मुझे सडनली बहुत ज्यादा पेमेंट करनी है किसी और देश के लिए, मतलब कोई मेरे पास डेट हो, कोई ईएमआई हो जो मुझे पे करना हो, मे बी कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो मुझे, और मेरे पास सडनली एकदम से फंड्स नहीं है वो करने के लिए, तो मेरे पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है एंड आई हैव द थिंग्स जो चीज मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती कैश में या इंटरनेशनल लेवल ऑफ जो उस कंट्री की करेंसी है उसमें. तो इस चीज की नॉन किस चीज की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, बताइए. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसीज, विच इज ऑप्शन सी.
So the concept of international liquidity is associated with international payments. These payments arise out of international trade in goods and services, also in connection with the capital movements between one country and another. जैसे अगर मैं कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रही हूँ जो यूएस की वेबसाइट है और उस पर मुझे कोई पेमेंट करनी हो और मे बी वो नहीं ले रहे हैं कि रुपीस में पेमेंट नहीं हो सकती, तो मेरे को उनकी करेंसी में पेमेंट करनी है। तो ये सारी पेमेंट्स जो हैं इनकी वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आपको ज़रूरत पड़ती है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की। और इसकी प्रॉब्लम जो है, इट इज़ जनरली रेफर्स टू जनरली accepted official means of settling imbalances in international payments, which is basically dollars and hard currencies. Because of this non availability shortage, SDR was introduced by IMF, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता सबके पास, सारी कंट्रीज के पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं होते, या अदर हार्ड करेंसीज जो हैं, जो हार्ड करेंसीज आर द करेंसीज दैट इज नॉट लाइकली टू डेप्रिसिएट, कि मतलब उसकी ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती वैल्यू में, और इट रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट स्टेबल रहती है। तो ऐसी करेंसीज जो हैं उसमें डील करने के लिए। So now that the quiz ends, let's end this on a happy note, that is, don't count the days but make your days count. So till then, happy learning.